Hello everyone. So today again I am going to start your mathematics session, and in last class we have already discussed about sets and its representation, types of sets. I hope you have already understood those topics clearly. So today in today's class we are going to discuss about subset, its another definition for equal set, some universal set and power set. So without wasting our time, let's get started. What is subset? First we'll start about subset. First we'll discuss about the definition of subset. What is the definition? A set A is said to be a subset of set B if all the elements of set A is contained in set B. So क्या मतलब है हमारा यहाँ पर? If all elements of first set is contained in second set, then we can say that A is a subset of B. Here this symbol denotes is a subset of. Okay, this symbol जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये symbol इस चीज को दिखाता है कि A is a subset of B. Okay, I think it is clear. The definition is clear. In other words, we can say A is a subset of B if and only if X belongs to A implies X belongs to B. ये मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसी सबसेट की डेफिनेशन को लिखते हैं. क्यों लिखते हैं इस तरह से? क्या मतलब हुआ इस मैथमेटिकल डेफिनेशन का? मतलब क्या होता है? See, X belongs to A, which means what? X belongs to A means what? X is what? X is any arbitrary element of A. Okay, X is any arbitrary element of set A. So this means what? If X belongs to A, this implies X must belongs to B. और ये केस कब होगा? जब A is a subset of B. अगर A B का सबसेट नहीं होता है तो ये कंडीशन जरूरी हो फॉलो करे, ये जरूरी नहीं है. लेकिन A यहाँ पर हमने पहले ही बात कर ली कि A is a subset of B. ये हमने IFF लिखा है, ये आपको समझ में आ जाएगा. ये सिंबल हम किस लिए यूज करते हैं? If and only if. इसे आप सिर्फ if नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे if and only if. So A is a subset of B if and only if. हम आगे बात कर रहे हैं, ये तभी हो सकता है जब कोई x जो सेट A में है वही x सेट B में प्रेजेंट होना चाहिए. यहां पर हमने एग्जाम्पल लिखा है. See, suppose we have a set A that is equal to 1, 2 and 3. Another set B is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. See, here 1 is an element of set A. Okay, 1 is an element of set A. It is also in set B. See, again 2 is an element of set A. It is also present in set B. Again 3 is an element of set A. It is also present in set B. Okay, so this means what? All the elements of set A. यहाँ पर A का और कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो all the elements of set A is present in set B. तो हम कह सकते हैं A is a subset of set B. लेकिन अगर आपके पास सपोज करते हैं आपके पास कोई एक ऐसा X सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 and 3. And if another set y is equal to 1, 2, 5, 6, 7. See, 1 is in x and it is also in y. Okay. Second, 2 is in x, it is also in y. यहाँ भी हमें क्लियर है. 1 भी y में भी है, 2 y में भी है. But see, 3 is an element of x and it is not present in y. Okay, 3 is an element of x but it is not present in y. So we cannot say that all elements of x is present in y. यहाँ definition हमारी क्या कहती है? If all elements of A is contained in B, then we can say that A is a subset of B. In this case, all elements of set X is not present in set Y. So we cannot say this implies, we cannot say that X is a subset of Y. We can say
x is not a subset of y. This is the symbol for not subset. ठीक है. लास्ट क्लास में जब हमने देखा था वेयर एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेट एंड डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेट, तो बिलोंग टू का सिंबल हम क्या लेते थे, दिस वन डिनोट्स बिलोंग्स टू एंड दिस वन डिनोट्स डज नॉट बिलोंग टू. यहां पर ये जो सिंबल है, दिस सिंबल डिनोट्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ एंड दिस सिंबल डिनोट्स इज अ सबसेट ऑफ. ये बात हम लोगों ने क्लियर करी. नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ, तो ये बातें हम लोगों को क्लियर है. आई थिंक आपको भी ये क्लियर हो गया होगा कि सबसेट हम कब कह सकते हैं, कि किसी सेट ए का कोई सेट बी सबसेट कब हो सकता है. ठीक है, सॉरी, ए बी का सबसेट कब हो सकता है. ठीक है, अब उल्टी बात करते हैं हम लोग. अगर ए बी का सबसेट है तो हम कह सकते हैं ना कि बी भी ए का कुछ है, और वो कुछ क्या है, वो कुछ ये है, सुपर सेट. If A is a subset of B, then B is the superset of A, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. A अगर B का सबसेट है तो B को कहेंगे B is the superset of A. ये छोटी सी बात है, कुछ खास बात है नहीं समझने की. A is a subset of B, then B is the subset of B is the superset of A. क्लियर है. अच्छा, अब आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा. क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कहीं पर सबसेट के सिंबल में हम नीचे इक्वालिटी का भी सिंबल डाल रहे हैं और किसी किसी जगह में इक्वालिटी का नहीं डाल रहे हैं. तो ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे हमने यहां पर हमने सबसेट के साथ इक्वालिटी का भी सिंबल डाला, यहां पर हम नहीं डाल रहे हैं. तो जरूरी नहीं है कि यहां पर ना हो, आप कर भी सकते हैं. पर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कहीं पर हमने इक्वालिटी का डाला है और कहीं पर हमने नहीं डाला है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आगे की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले थोड़े एग्जांपल्स और देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज सी, दिस इज अ सेट ना. कोई भी एलिमेंट अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो दैट इज अ सेट. तो सी दिस सेट इज हियर, जहां पर एलिमेंट आपका क्या है, 1. अनदर सेट इज व्हाट, 1 2 3. सी element 1 is present in another set, so we can say that this set is a subset of this given set. Clear? Next one is, see, here element is what, 1 2, and in this set elements are what, 1 3 and 5. सी यहां पर एलिमेंट 1 है, 2 है. 1 दूसरे सेट में तो प्रेजेंट है बट 2 इज नॉट प्रेजेंट इन अनदर सेट. सो वी कैन नॉट से दैट दिस सेट इज अ सबसेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज नॉट प्रेजेंट इन अनदर सेट. सो वी कैन से दैट दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ द गिवन सेट. क्लियर है? नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द अनदर एग्जाम्पल. सी n क्या होता है, आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि n इज फॉर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. z इज व्हाट, z इज द सेट फॉर इंटीजर्स. q इज व्हाट, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड c डिनोट्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, जिसको हमने अभी नहीं पढ़ा है बट आप क्लास 11th में इस चीज को पढ़ोगे. ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं. सी ऑल द नेचुरल नंबर्स, आगे को आप यहां पर मत देखिए, सिर्फ इतना ही देखिए, n इज अ सबसेट ऑफ z. क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. क्यों? n स्टार्ट कहां से होता है, 1 से. 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ठीक है, z आपका क्या होता है, z इज ये सारे नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, उसके साथ आपका क्या होता है, 0 होता है, -1 -2 -3, वो लेफ्ट साइड चला जाता है. तो सी n के सारे एलिमेंट्स z में प्रेजेंट है ना, तो वी कैन से दैट n इज अ सबसेट ऑफ z. नाउ वी आर मूविंग टू अनदर दिस पोर्शन. Z is a subset of Q. Q is what? Q is the set of rational numbers. So we already know that all integers is in the form of P by Q ना.
ऑल इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो सारे इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं लाइक 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5, बहुत सारे, या 15 by 2, बहुत सारे इस तरह के भी नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर्स हैं। ये इंटीजर्स के अलावा हैं। इंटीजर्स तो रेशनल नंबर खुद भी है, तो इंटीजर्स सारे रेशनल नंबर में इंक्लूडेड है। तो z इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। अब आगे के पोर्शन को लिया जाए, Q इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? Q क्या है? रेशनल नंबर। और रियल नंबर्स आपको पता है, रियल नंबर्स में क्या क्या होते हैं? रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो जब रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों हैं, तो सारे रेशनल नंबर रियल नंबर में इंक्लूडेड है ना। सो वी कैन से दैट Q इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू दिस पार्ट। R इज अ सबसेट ऑफ C। आप लोगों ने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ये बता दूं फिलहाल के लिए, पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब उसकी बात हम अलग से करेंगे, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, ऑल रियल नंबर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं, like this type of number under root of -2। ऑब्वियसली अभी आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा कि अंडर रूट -2 तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इस तरह के नंबर्स पॉसिबल हैं। तो उसमें पॉसिबल हैं, बट रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो रियल नंबर जितने भी हैं वो कॉम्प्लेक्स भी कंसिडर हो सकते हैं। तो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक को हम ज्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है T is a subset of R, where T is the set of all irrational numbers. Of course, जिस तरह से Q is a subset of R, उसी तरह से T is a subset of R. क्यों? क्योंकि T क्या है? Set of irrational numbers हैं। तो सारे irrational numbers जो होंगे वो रियल नंबर में इंक्लूडेड होंगे, उसके अंदर होंगे ही। रियल नंबर में सारे irrational नंबर होते हैं, so T is a subset of R. एक छोटी सी और बात हमारी क्या रह गई है, हमने लास्ट क्लास में एक पढ़ा था इक्वल सेट। क्या पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन? कि A और B में अगर दो सेट्स हमारे पास A और B हैं, तो ये दोनों इक्वल कब होते हैं? अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, ठीक है। अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, सपोज A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 3 2 1, तो ऑर्डर डजंट मैटर ना। ऑर्डर डजंट मैटर, आपका किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट लिखा हो C, बट 1 इज प्रेजेंट इन A, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन B, 2 इज प्रेजेंट इन A, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन B, 3 इज इन A, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन B। तो हम क्या देख रहे हैं? दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, ना तो किसी में एक्स्ट्रा ना तो किसी में कम, ठीक है। सेम एलिमेंट्स हैं, तो वी कैन से दैट दे आर इक्वल सेट। लेकिन क्योंकि अब हम लोगों ने सबसेट पढ़ लिया है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन थी, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगा। अब आप ये देखिए, इस चीज को कंसिडर कीजिए। हमने क्या कहा? हमने सबसे पहले क्या कहा है? A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A if and only if A is equal to B। हमने ये बात कही। पहले कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला कंडीशन क्या है हमारा? A is a subset of B and B is a subset of A। देखिए, दोनों ही बातें की जा रही हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि A B का सबसेट है, और ये भी कह रहे हैं कि B A का सबसेट है। पहले केस के लिए क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम लेते हैं A इक्वल टू सपोज A B एंड C एंड B इक्वल टू C A B। सी
ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ हैं, बी में हैं। ए भी है, बी भी है और सी भी है। यहां हम उल्टी तरह से भी बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में हैं, तो बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, और क्लियर है कि आप इसे देख के बता सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो हम दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then we can say A is equal to B। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये कैसा सिंबल बनाया है, ना तो ये इंप्लाइज है ना तो ये इक्वल है। ये किस चीज का सिंबल है, जो हमने यहां पर बात कही थी, इफ एंड ओनली इफ। जब भी कंडीशन आती है इफ एंड ओनली इफ की, उसका मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो वाइस वर्सा भी ट्रू है। दिस मीन्स व्हाट, आप ये भी कह सकते हैं कि A इक्वल टू B implies A is a subset of B and B is a subset of A। ये दोनों ही बातें आप कह सकते हैं, चाहे तो ये पहला स्टेटमेंट हो उससे आप ये प्रूफ कर सकते हो, चाहे ये स्टेटमेंट हो उससे आप प्रूफ कर सकते हो A is a subset of B and B is a subset of A। सो यहां तक बातें हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़े और एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ हम लोग जो आपको हमने कहा था कंफ्यूजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि कहीं पर हम इक्वालिटी का साइन दे रहे हैं और किसी किसी जगह पे हम नहीं दे रहे हैं, और अगर देते हैं या नहीं देते हैं, कब ऐसा करेंगे कब नहीं करेंगे, तो ये अभी और आपको डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करना है कि सबसेट जो होते हैं उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो उसकी बात अब करेंगे। सो प्रॉपर सबसेट, क्या हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की। तो आपको कंफ्यूजन था ना, कंफ्यूजन क्या था कि हम कहीं पर इस तरह का सिंबल यूज कर रहे हैं सबसेट के लिए और कहीं पर हम इस तरह का सिंबल यूज कर रहे हैं। जरा सा डिफरेंस है दोनों सिंबल में, हालांकि आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर भी बताऊं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। फर्क क्या है, सी इफ A is a proper subset of B, जहां पर आपको इक्वालिटी का सिंबल नहीं दिया होता है, दिस मीन्स व्हाट, A is a proper subset। और प्रॉपर कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि there must be some x belonging to B। हमने यहां पर सम नहीं लिखा है, यहां पर होना चाहिए there must be some x belonging to B implies that x does not belong to A। क्या मतलब है, मतलब ये है कि प्रॉपर सबसेट, अगर कोई सेट A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब B में कोई एक ऐसा एलिमेंट कम से कम होना चाहिए, कोई एक भी ऐसा होना चाहिए जो A में प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, सी यहां पर A इक्वल टू 1 2 लिया ना हमने, और B इक्वल टू 1 2 3 लिया। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर 1 B में है, ठीक है, 2 भी B में है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि 3 जो है वो A में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि कोई एक तो ऐसा एलिमेंट B का है जो A में प्रेजेंट नहीं है। तो आपने क्या देखा कि एक ऐसा एलिमेंट अगर हो, कोई एक भी, जरूरी नहीं है सिर्फ एक हो सकता है इससे बहुत ज्यादा भी हो, ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट भी ऐसा हो जो कि A में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, देन वी कैन से दैट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब इम्प्रॉपर को पढ़ लें जरा, पढ़ना क्या है, A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। कब होता है, जब फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू B implies x belongs to A। यानी कि देखिए, सबसे पहले तो हमने बात क्या की कि A जो है वो B का सबसेट है, ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर भूल जाते हैं। हमने क्या बात की कि A जो है वो B का सबसेट है। सबसेट है इसका क्या मतलब है, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, लेकिन हम अभी तो सबसेट बोल रहे हैं, लेकिन अब अगर हम इम्प्रॉपर उसमें ऐड कर दें तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि B के भी सारे एलिमेंट्स, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट B में नहीं है जो कि A में ना हो, ठीक है, B के का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि A में ना हो। फॉर ऑल x belongs to B, x must belongs to A। सी है
यहां हमने सेट ए को क्या लिया है, ए बी सी, और सेट बी को क्या लिया है, सी बी ए। इसका क्या मतलब हो जाता है, सी ए बी में भी है, बी में भी है, सी में भी है। और यहां आप देखिए तो बी के में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, वो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए में ना हो। तो इसका मतलब हो जाता है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और क्योंकि बी का कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो वी कैन से ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हालांकि आपको बात में प्रॉपर या इम्प्रॉपर वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती है, बट इन दोनों साइन में यही डिफरेंस है। हाँ, अब आप जो बात समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि यहां पर तो ए और बी इक्वल है, तो वो सबसेट कैसे हुआ। तो हमने सबसेट की डेफिनेशन में ज्यादा वो कंडीशंस नहीं डालनी। हमने सबसेट की डेफिनेशन में क्या कहा कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होते हैं तो वो सबसेट होता है। यहां हम कंडीशन देख रहे हैं, आप कह सकते हैं बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, ये भी आप कह सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल हम ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहां पर आप बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही होती है। ठीक है, तो हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि इस चीज से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो, कंक्लूड ये कर सकते हो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट, क्योंकि ए और बी इक्वल है ना, आप देख रहे हो यहां पर ए और बी सेट क्या है, इक्वल सेट है, ए इक्वल टू बी। और हम ये भी देख रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि हर एक सेट के सारे एलिमेंट्स उसी सेट में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, A is a subset of A. Next thing is what? Null set. Null set की बात की हमने, null set की क्या बात की हमने कि null set is a subset of every set. अब आप कहेंगे कि null set में तो कुछ होता ही नहीं है, तो null set कैसे होता है, सारे सेट का सबसेट। क्यों, सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। null set में कौन सा एलिमेंट है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की जगह हर जगह है। ठीक है, कुछ नहीं हर जगह कंटेन्ड है, तो जब नल सेट में कुछ भी नहीं है उसको हम हर किसी सेट का सबसेट मान सकते हैं। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक और चीज आप देख लीजिए कि इफ NA इज इक्वल टू P, NA इक्वल टू P का क्या मतलब है, किसी भी सेट A में अगर P एलिमेंट है, ओके, P नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर P एलिमेंट्स, देन उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, आप कितने उसके सबसेट्स फॉर्म कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A विल बी 2 to the power P। हालांकि ये कहां से आया अभी आपको इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं किया है। बाइनोमियल थ्योरम भी आपका इसी क्लास में है जो आप आगे कभी पढ़ेंगे, आपका वो दूसरा चैप्टर है। बट फिलहाल इतना जानिए कि अगर किसी सेट A में P नंबर ऑफ एलिमेंट है देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 to the power P। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे, अब बिना प्रूफ के तो हम मानेंगे नहीं। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू ABC, हमने 3 एलिमेंट ले लिया, 3 एलिमेंट लिया, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3। हमने क्लेम क्या किया था, अगर P एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power P। तो यहां पर 3 एलिमेंट हैं तो यहां टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 8। ओके, तो अब 8 देख लीजिए सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अभी हमने बात की क्या, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो कोई सा भी सेट हो पहला सबसेट हमने नल सेट ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज हमने बनाया है सेट A, इसका एक सिंगल एलिमेंट लीजिए और उसे सेट की तरह प्रपोज कीजिए वहां पर। तो सेट की तरह हमने यहां पर इसे रख दिया
लिया, और दिस ए इज व्हाट, दिस ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट इज अनदर सिंगल एलिमेंट लीजिए बी, बी को हमने फिर से वहां रख दिया सेट की तरह, तो बी इज अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट ए बी सी। नेक्स्ट इज अनदर सिंगल एलिमेंट लीजिए सी। फिर अब हम क्या करेंगे, हमने सिंगल एलिमेंट्स ले लिया, अब हम पेयर कर लेते हैं, वो इजी वे में हो जाएगा। आप ए बी ले लीजिए, तो दिस ए बी, ऑफ कोर्स दिस ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। अगेन आप बी सी ले लीजिए, दिस बी सी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। हेयर अगेन ए सी आप ले लीजिए, ए सी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट इज दिस ए बी सी, ऑफ कोर्स every set is a subset of itself। see a b c हमने तीन को एक साथ ले लिया है, तो ये भी तो इसका सबसेट होगा ना, तो which is already the set itself, this is already a set itself। तो हम इन 8 में से 2 to the power p में से दो सबसेट्स तो आपको ऑलरेडी पता होते हैं, क्या, सबसे पहला नल सेट और सबसे लास्ट हमारा वो सेट खुद ही। ठीक है, एक और एग्जाम्पल छोटा सा वो देख लेते हैं। सपोज b इक्वल टू 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। अब आप कहेंगे यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, सेट के एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। यहां पर देखिए 1 इज सेपरेटेड बाय 2 विद अ कॉमा, 2 इज सेपरेटेड बाय दिस एलिमेंट विद अ कॉमा। ये एक जो है इसको आप सिंगल एलिमेंट कंसीडर कीजिए। ये 3 4 है ना, सपोज कर लीजिए दिस 3 4 इज x। अब आप इसको x सपोज करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 x, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड x। this here number of elements in b is what 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 8। अब यहां पर देखिए पहला सबसेट 5, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट इज 1, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट इज 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं यहां पे 3 4 पे। यहां आपको लग रहा होगा कि हमने गलत लिखा है, पर ये गलत नहीं है। यहां देखिए हमने क्या यूज किया है, डबल कर्ली ब्रैकेट यूज किया। क्यों, क्योंकि हमारा एलिमेंट क्या था, x, हमारा एलिमेंट था x, और सबसेट के लिए इसको क्या करना होगा, सेट बनाना होगा। तो x है क्या, तो x हमारा क्या है, कर्ली ब्रैकेट 3 4। x हमारा 3 4 नहीं है, कर्ली ब्रैकेट 3 4 है, तो एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना, और एलिमेंट हमारा क्या था, कर्ली ब्रैकेट 3 4। तो इसको हम जब हमने सेट बनाया तो दिस इज द सबसेट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 4 की बात करते हैं तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ना के सबसेट है। ये आपका एलिमेंट है सेट ए का। लेकिन अगर आप डबल कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं तो नाउ दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। इस दोनों में फर्क आपको समझना होगा कि ये आपका एलिमेंट है जबकि ये जो हमारा है वो सबसेट है। तो आपको क्या करना है, अब हमने क्या कहा था, इससे पहले एग्जांपल में क्लियर था, पहले हमने सिंगल एलिमेंट लिया, फिर पेयरिंग ले ली, फिर 3 का बना लिया, 3 को सेट बना लिया, आगे और भी एलिमेंट्स होंगे तो 4 का सेट बना लेंगे, वो डिपेंड करता है। तो यहां पर हमने सिंगल एलिमेंट लिया, इसको एक सपोज कीजिए तो आपके लिए इजी है। तो हमने सिंगल एलिमेंट लिया, अब दो की पेयरिंग कर ली, 1 2, 1 एंड x which is 3 4, 2 and x which is again 3 4, and at last all the elements which is the set itself। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हम सबसेट किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो हमारा ये आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे, जब क्योंकि हम लोगों ने सबसेट बनाना सीख लिया है, अब हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स के सबसेट्स की। ठीक है, रियल नंबर का सबसेट कैसे होता है और उसमें इंटरवल को कैसे इंक्लूड करते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपने तो पहले भी कर लिया है ना, रियल नंबर्स आपने ऑलरेडी देख लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। इंटीजर्स क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। रेशनल नंबर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सेम इर्रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ
सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको आप दूसरे तरीके से n इज अ सबसेट ऑफ z, n इज अ सबसेट ऑफ q, इज अ सबसेट ऑफ r। पहले भी हम लोगों ने ये बात की थी, तो इस चीज को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पर अब अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, आपको अगर मैंने कहा, आपको याद होगा हम लोगों ने बात किसकी की थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की थी ना। तो सपोज करते हैं आपको अगर मैंने लिखा x such that x belongs to r and 1 less than equal to x less than equal to 3, अगर मैंने ये लिखा, यहाँ हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ हमने दिया हुआ है रियल नंबर। और आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी दो नंबर के बीच, किसी भी दो रियल नंबर के बीच कितने रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे कहूँ ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर में, मैं आपसे कहूँ कि आपको इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। रोस्टर फॉर्म में करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है, हर एक एलिमेंट को लिस्ट करना होता है। तो आप उसे लिस्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पर क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना इसमें, इसकी जगह, इस r की जगह अगर मैं आपको n देती, अगर मैं आपको n या z दे देती, तो इसका रोस्टर फॉर्म बहुत अच्छा इजीली आप लिख सकते थे 1 2 3। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने r दिया हुआ है, यहाँ पर हमने रियल नंबर दिया है, तो आपको नॉर्मली रोस्टर फॉर्म के लिए एक सेट में उसे रिप्रेजेंट करना, हर एक एलिमेंट को लिखना, लिस्ट करना इजी नहीं है। तो ऐसी जगह के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज हियर इंटरवल्स। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरवल्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। अगर हमारा ये क्या है, ये रियल नंबर का सबसेट ही तो है जिसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसे हम किस तरह से इंटरवल्स के फॉर्म में लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए, इंटरवल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। दोनों में से आप कोई सा भी नाम चूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सेमी ओपन, आप कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। हमने क्या लिखा, इफ A B belongs to R, which means what, A and B are what, they belongs to R means they are real numbers। कोई भी A और B आप real number लेते हैं and A is less than B, suppose हमने 1 और 2 लिया, okay, next then set of all real numbers x such that a less than equal to x less than equal to b। इसका क्या मतलब हुआ कि वो सारे रियल नंबर जो a और b के बीच में है इंक्लूडिंग a and b less than equal to हम ले रहे हैं ना, तो a is included, b is also included, so for all x in between a and b with a and b included is known as closed interval, जिसे आप किस तरह से डिनोट करते हैं, see this one is square bracket ab। तो जब हमने पहली क्लास ली थी सेट के फर्स्ट पार्ट पे, आपको क्या बताया था कि सेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। सेट को के सारे एलिमेंट्स को जब लिस्ट किया जाता है तो उन्हें विद इन कर्ली ब्रैकेट रखा जाता है। पर यहाँ पर हम कौन सा ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ए बी लिखते हैं, इस जगह ए बी लिखने का मतलब क्या होता है, दैट दिस सेट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, this set has only 2 elements, that is what, first element is a and second element is b, but square bracket ab, this square bracket ab means what, they have infinite number of elements, this set has infinite number of elements। इसमें कितने elements है, infinite elements है। कौन कौन से, a और b जिनका एंड है और उनके बीच जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इसे नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सी लाइक दिस इज अ नंबर लाइन, here one point is a, another point is b, so this means here
this a less than equal to x less than equal to b, this is represented on number line like that. See, this is a number line here, a and b they are closed. See, a में हमने क्या लिखा है, हमने पूरा डॉट लिखा है, बोल्ड डॉट. This bold dot represent that A is included. This bold dot represent that B is included. And ये bold line जो हमने दिया है ये बताता है कि A और B के बीच जितने भी numbers हैं सारे included हैं. तो I think closed interval आपको easily समझ आ गया होगा. Now we are moving to next, that is open interval. ज़्यादा फर्क नहीं है. Closed interval में ये border elements are included, but open interval में ये border elements included नहीं होते हैं. यहाँ पर क्या है, a लेस देन x लेस देन b, ये वो सेट है, उन सारे एलिमेंट्स का सेट है जिसमें जो a और b के बीच आते हैं. यहाँ ना तो हम a को इंक्लूड कर रहे हैं ना तो हम b को इंक्लूड कर रहे हैं. अगर आपके पास 1 और 2 लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपको मैंने कहा कि 1 और 2 और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट दिया, तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन, विच मीन्स व्हाट, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, बट इनके बीच जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे. और आपको पता है ना 1 और 2 के बीच कितने रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं. तो यहाँ पर आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि यहाँ हमने 1 2 स्मॉल ब्रैकेट में लिया, यहाँ हमने ए बी कर्ली ब्रैकेट में लिया है और यहाँ हमने ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है. इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं एक बार और आपको रिपीट कर रही हूँ. इन कर्ली ब्रैकेट का मतलब है दिस सेट हैज जस्ट 2 elements. Okay, this set has just 2 elements, that is A and B. स्क्वायर ब्रैकेट ए बी का क्या मतलब है, दिस सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. This means this set has all those elements which is in between A and B, and A and B both are included. Here 1 2 small bracket means what, this is also an infinite set. This set include all those elements which is in between 1 and 2, all those real numbers which is in between 1 and 2, but 1 is not included, 2 is not included. I think this is clear. Okay, now we are moving to the third part of interval, that is semi open और semi closed. आप दोनों में से कोई सा भी नाम लें. Semi open और semi closed means what, all those x in between a b in which either one of them is included and other one is excluded. Like in this way, see in this one x is greater than equal to a but less than b. Okay, in this one a is included but b is excluded, and in this one a is less than x less than equal to b. यहाँ आप क्या देख रहे हैं, b is included but a is excluded. तो आपको इसे लिखने के लिए आप कैसे लिख रहे हो, आप इसे लिख रहे हो यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये फर्स्ट वाला हमने क्या किया है, ए को इंक्लूड किया है. हमने क्या कहा था, जहां पर नंबर बॉर्डर एलिमेंट इंक्लूड होता है वहां हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट ए, बट सिंस बी इज नॉट इंक्लूडेड तो वी आर क्लोजिंग दिस इंटरवल विद स्मॉल ब्रैकेट. क्यों, क्योंकि b इंक्लूडेड नहीं है. तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट इन which contains all those elements in between a and b, and a is included but b is not included. See here a is excluded but b is included. तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया हमने, a को हमने स्टार्ट किया विद स्मॉल ब्रैकेट एंड b को एंड किया है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ. स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि हमारा b जो है वो इंक्लूडेड है, और स्मॉल ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि a एक्सक्लूडेड है, उसे हम ले नहीं रहे हैं सेट में. ठीक है, आई थिंक इंटरवल आप लोगों को समझ आ गया होगा. सो यहाँ तक हमने इंटरवल की बात
कर ली। दो बहुत ही छोटे से टॉपिक आपके रहते हैं, फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल सेट एंड अदर वन इज पावर सेट। सी यूनिवर्सल सेट, आपके पास बहुत सारे कुछ सेट्स दिए हुए हैं। कुछ सेट्स क्या, जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको हमने दे दिया एक सेट 1 2 3 और दूसरा सेट आपको हमने दिया है नेचुरल नंबर, तीसरा सेट आपको दिया है हमने सी ए इज 1 2 3, बी सपोज आपको हमने दे दिया 1 2 5 6 7, सी हमने आपको दे दिया 11 19 17 2 5 7 सपोज दिस। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सेट फॉर ऑल गिवन सेट्स। यानी कि सुपर सेट आपको हमने बताया ना, सुपर सेट क्या होता है, इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन B इज नोन एज द सुपर सेट ऑफ A। हमने क्या कहा, यहां पर जो हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं A B C, इन सब के लिए आप सुपर सेट क्या ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से चाहे तो इसे आप होल नेचुरल नंबर ले लो। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में A तो आ जाएगा, नेचुरल नंबर में B भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर में C सेट भी आ सकता है, तो ये सारे सेट नेचुरल नंबर में आ सकते हैं। तो दिस नेचुरल नंबर इज द सुपर सेट फॉर दिस A, for this B and for this C. Since this natural number can be a superset for all the given sets, so we can say this natural number is the universal set here. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इसे नेचुरल नंबर ही ले लो। आप चाहो तो, क्योंकि आपने देखा 1 2 आई थिंक आप 20 ले सकते हो, आप 1 2 3 इसे आप अप टू 20 भी ले सकते हो। यहां पर जितने भी सेट ए में 1 2 3 है ना, वो इस सेट में इंक्लूडेड है। सेट बी में 1 2 5 6 7 है, वो इसमें है। सेट सी में 11 19 17 2 5 7 वो भी इस सेट में है। तो आप इसे भी, इस सेट को भी आप यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करने के लिए सिर्फ इतना ही सोचना है कि जो भी आपका गिवन सेट है वो उस यूनिवर्सल सेट में आना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट फॉर ऑल गिवन सेट्स। एक और ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास सेट ए जो है वो आपका है सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ओके, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सपोज आप बी सेट लीजिए विच इज सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, ओके। हमने सेट ए लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के लिए, सारे जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है सबका हमने सेट ले लिया, वो सेट ए है। सेट बी हमने क्या किया, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल हैं वो हमने सेट बी ले लिया। तो इसके लिए आप यूनिवर्सल ट्राइंगल क्या ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं, आप यूनिवर्सल सेट इसे ले सकते हो क्या, आप ले लो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब जाहिर सी बात है, यहाँ तो आपने सारे ट्राइंगल्स ले लिए ना, सारे ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्लूडेड है, सारे ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आप इन गिवन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट ले सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, विच इज व्हाट, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज व्हाट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ओके, सपोज देयर इज अ सेट ए, इस ए के जितने भी सबसेट्स फॉर्म होंगे उनका कलेक्शन मीन्स व्हाट, सेट। ऑफ कोर्स सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो बात तो हम लोगों ने कर लिया। अब क्योंकि हम सेट ही कर रहे हैं तो बार बार वेल डिफाइंड ना यूज कर रहे हैं। तो पावर सेट इज व्हाट, सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनके कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं ए का, जिसे हम पी ए डिनोट करेंगे। ऑफ कोर्स ए की जगह बी हो तो पी बी, ऑफ कोर्स ए की जगह एक्स हो तो पी एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, एंड जाहिर सी बात है आपको ये चीज स्मॉल नहीं यूज करनी, क्योंकि ये सेट है ना, सेट को हम हमेशा कैपिटल से यूज करते हैं, डिनोट करते हैं।
सो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए. ओके, सी एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. सपोज वी हैव अ सेट ए विच हैज 2 एलिमेंट्स x एंड y. आपको पता है ना, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 2, कितने इसके सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट्स बनेंगे 2 to the power 2, दैट इज 4. तो 4 सबसेट्स कौन कौन से बनते हैं, यहां पर आपका एलिमेंट है x और y. सबसेट आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आपका सबसे इजी सबसेट दैट इज व्हाट, 5, नल सेट. नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो आप नल सेट सबसे पहला सबसेट लेंगे. फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था आप सिंगल एलिमेंट को लीजिए, उसका सेट बनाइए. तो सिंगल एलिमेंट हमने लिया क्या, x. फिर एक और एलिमेंट लीजिए, सिंगल एलिमेंट y. अब क्योंकि हमारे पास और कोई सिंगल एलिमेंट नहीं बचा है, हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट को फिर एक साथ लेंगे. तो दैट इज एक्स वाई. सी हमारे पास 4 सबसेट्स आने थे ना, 1 2 3 4 सबसेट्स मिल गए. ये सारे क्या हैं, ये सारे ए के सबसेट्स हैं. तो ये सारे ए के सबसेट्स हैं. तो हमने क्या देखा कि इन सबसेट्स का सेट, हमने क्या कहा था, कलेक्शन बनाने को, और सेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे विद इन कर्ली ब्रैकेट्स रखते हैं. तो विद इन कर्ली ब्रैकेट हमने इन सारे सबसेट्स को रख दिया. अब ये एक सेट बन गया है. दिस इज द सेट ऑफ द सबसेट ऑफ ए. सो दिस वन इज नोन एज पावर सेट A. Okay, that is clear. I think this is clear to all of you. Okay, so in this class we have discussed about the subsets, about intervals, about universal set, power set. So thank you everyone. In the next class we will discuss about the Venn diagram, operations on sets. जिस तरह से हम ऑपरेशन बाकी मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं, हम सेट्स में किस तरह के ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.